today what we will learn, like the SEO, the beginning of SEO, the beginning of SEO or beginning of the digital marketing. First of all, we have to ensure that the targeted terms what your people are searching for your kind of business. For example, you are running a maybe the restaurant, right? You are running a restaurant, so in that cases you have a restaurant website and you are offering the restaurant services, means the fooding services. Now you have to understand the online users search terms, what kind of terms they are searching. They may be searching for the buffet wala, right? So buffet, lunch, restaurants in Kolkata, in near Kasba, maybe in a Kestapur, Any location. So you have to understand what kind of terms they are using to find your kind of businesses. Again, your kind of businesses. मतलब आपके बिजनेस के हिसाब से और भी आपका कंपटीटर है, आपकी बिजनेस है जो भी वो सेम थिंग्स ऑफर करे, तो आपको वही ढूंढना है जो आपकी टारगेटेड व्यूअर्स और टारगेटेड जो आप कस्टमर्स है उसको पकड़ने के लिए उनका जो रिक्वायरमेंट है उसी के माफिक आपको ढूंढना है. How we will do it? Through keyword research. Through keyword research we will identify our targeted visitors terms. যেমন আমার যদি একটা ডিজিটাল মার্কেটিং কোম্পানি থাকে, if I am running a digital marketing company and I have a website and I am offering the services like SEO services, PPC services, social media services, right? So मेरे को चेक करना है कि क्या क्या टर्म्स उसके रिलेवेंट लोगों ने सर्च कर सकता है, सर्च कर रहा है, और कौन सा टर्म्स देके करने से मेरा बेनिफिट हो सकता है. Sir, one at the rate type here, sir. At the rate will come up with this one. ठीक है. So now over there we learn that techniques के how to find the cream keywords for your efforts. ठीक है. तो first जो होता है I am sharing into a notepad. नोटपैड में मैं एक आपको टेक्निक्स शेयर कर रहे हैं जो एडवांस टेक्निक्स है. यूजुअली लोगों ने क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई एसईओ कंपनी में आप नौकरी करोगे, काम करोगे, तो वहां पे क्या होता है, दे यूजुअली गो फॉर द वन स्टेट वे फॉर्मूला. मैं वो फर्स्ट दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मेरा जो टेक्निक है वो आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है, क्या एडवांस है, क्या नहीं है. करेक्ट. तो व्हाट दे डू, दे यूज अ कीवर्ड प्लानर व्हिच इज ऑन द गूगल एडवर्ड्स टीम. गूगल एडवर्ड्स में कीवर्ड प्लानर बोल के एक टूल्स है, जो टूल्स आपको रेकमेंड करता है कि क्या क्या टर्म्स, रेलेवेंट टर्म्स है आपके बिजनेस के हिसाब से. ठीक है. सो वो आपको यहाँ पे देखने को मौका मिलेगा. आई थिंक आई हैव टू साइन इन विद डिफरेंट. sorry. ज्यादा से ज्यादा बंदा क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल कैन यू जस्ट गिव मी योर कंपनी वेबसाइट यूआरएल. blog bills blog bills bills blogbills.com robertsboard.com আরেকটা আছে. না এটা তো ইয়ে যাচ্ছে. bloggersboard.com bloggers board BOT. See, for example, this is a website, okay, and you want to promote this website.
and you want to identify for this website what kind of keywords will be suitable. तो ज्यादा से ज्यादा एसईओ कंपनी मतलब जो एसईओ कंपनी में जो लोग काम करते हैं, जो टिपिकल द कीवर्ड रिसर्चर्स वर्क्स फॉर दैट, व्हाट दे डू, वो पहले आपका सर्विसेज पकड़ लेते हैं, मतलब जो भी सर्विसेज आपका है, एंड ऑन दैट बेसिस में भी यू आर ऑफरिंग द यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काइंड ऑफ, राइट. सो क्या करते हैं यहाँ पे, लाइक्स दे पुट द दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यूट्यूब मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है, और rather you can go ahead for the YouTube marketing company. Then you can go ahead for the second, like software development. So they supposed to type software development company. এই জায়গাটা আমার মতে হোমমেড ফুড Exactly, একদম ঠিক তাই, হোমমেড ফুড এবং হোম ডেলিভারি টিফিন সার্ভিসেস এগুলো সব করে লিখবো একদম ঠিক। জিওগ্রাফি লোকেশনটা এখন লিখবো না, আমি এটা দেখাচ্ছি যেটা নর্মাল লোকে করে, জেনারিক পিপল যেটা করে, জেনারিক 90% যদি আমার টিপিক্যাল এসইও কোম্পানি যেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বা সেখানে যাদেরকে বলো, তারা কিন্তু এই প্রসেসটাই ফলো করে যেটা এখন আমি দেখাচ্ছি। এটা যায়, এটা গিয়ে পার্টিকুলার যেটা ওর মানে এখান থেকে যা যা টার্মস পাচ্ছে সেটার সাথে কোম্পানি এগুলো করে, দেন দে পুট ইনটু ওভার হিয়ার, রাইট, এবং এখানে দেখো গেট আইডিয়াস করে একটা লিস্ট বেরিয়ে যাবে, ঠিক আছে, ধরো একটা লিস্ট এভাবে করে এখানে আমি গেট আইডিয়াস দিলাম, দিলে পার্টিকুলার দেখো এখানে একটা লিস্ট বেরোবে, this is a list. There's a plenty of keywords, terms Google suggest which is relevant to this, and how much people are searching, average monthly search also you will get an idea, ठीक है, you will get an idea for this. So यहाँ पे आपका अभी मेरा टेक्निक क्या रहेगा, जो गाइडेंस क्या रहेगा, दैट पर्टिकुलर आई विल शेयर कि और क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो जो इसको और बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ से आपको अगर रिपोर्ट जो मिलेगा वहां से भी आप डिसीजन ले सकते हो, बट इफ यू पुट a little bit effort in it, so it will give you a fantastic the results, the search terms which are actually the appropriate to your business, plus it's a conversion oriented. আমার যে জাস্ট ডায়ালে বিজ্ঞাপন করে যাওয়া হচ্ছে তার থেকে এটা exactly. So this is the way the generic people should do, and if you are going for the modified search and all, so you can see this, or another things they supposed to use, they use the URL, ठीक है, आप इसको हटा दो, क्या कर रहे हैं आपको यहाँ पे आप वेबसाइट URL दे देना, ठीक है, तो they will identify and they will pick the terms or the words you have used on your website, वहां से आपको कुछ सजेशंस वो दे देगा, वहां से भी आप आइडिया ले सकते हो क्या क्या टर्म्स मतलब लोग सर्च कर रहे हैं जो आपकी साइट पे लिखा हुआ है, तो वेब डेवलपमेंट कंपनी, वेब डेवलपर, प्रोफेशनल वेब डिजाइन, साइट डिजाइन, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट, करेक्ट ना, सो यहाँ से भी आइडिया मिल सकता है, करेक्ट। नाउ आई एम मूविंग इनटू माय पार्ट कि कैसे आप लोग करोगे और कैसे करने से और बेटर रिजल्ट आपको मिल सकता है। फर्स्ट, जो लोग कर रहे हैं वो आपको भी करना है, लाइक create a list as per your choice and thought. Relevant to your business website content. दो कर रहा था, मतलब आपकी बिजनेस के हिसाब से आपको जो दिमाग में आ रहा है, आपके दिमाग में जो आ रहा है कि आप अगर इसी बिजनेस की टाइप का ढूंढ रहे हो तो क्या क्या ढूंढ सकते हैं, आपके कस्टमर क्या क्या नाम से आपका ढूंढ सकते हैं, जो आपको लगता है जैसा लगता है वो आप एक लिस्ट बना लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को लेके कंटिन्यू करता हूँ, तो मेरे दिमाग में आ रहा है भाई मैं इंडिया से कर रहा हूँ, तो इन दैट केसेस आई विल डेफिनेटली टेक द मेजर बुक्स, वेब डिजाइनिंग, मैं यहाँ पे जो भी लाइक टर्म्स है दैट आई विल पिक,
ऐसा करके मैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, लाइक सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन से, सो ये टर्म्स है। तो क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंपल तरीका है, इसके साथ आप कंपनी ऐड कर दो। আমার ক্ষেত্রে সেম, হ্যাঁ কোম্পানিতে আপনার ক্ষেত্রে হবে না, আপনার ক্ষেত্রে সেভাবে করে দেখে নিতে হবে কোনটা রেলেভেন্ট যায়। এটা প্লাস আমি এখানে দিয়ে দিলাম, আর কি হবে সার্ভিসেস, আমার তো সার্ভিসেস, হ্যাঁ সার্ভিসেস আসবে। এবার মানে আমি ওই গ্রুপটা নিয়ে একটা যেটা জেনারেট করা যায় সেটা আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি আর কি, সরি। ইজি প্রসেস কি আরটা কি, এটাকে আমি একটা গ্রুপ করে নিতে পারি যে আমি যে মার্কেটটা আমি টার্গেট করছি, যদি আমি ইন্ডিয়ান মার্কেট টার্গেট করি তাহলে আমার এখানে কোম্পানি ইন ইন্ডিয়া লোকেশন জিওগ্রাফি, এক্স্যাক্টলি। परफेक्ट सर। सो ऐसा करके मैं एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट किया है जो मेरा ग्रुपिंग का है, जो मेरा साइट से कंसेप्ट बना है, जो मेरे को लगता है यही लोग ढूंढेंगे और कुछ नहीं, करेक्ट। सो ये मेरा फर्स्ट पिक, ठीक है। यही पिक से मेरा डिसीजन लेने का कोई जरूरत नहीं है। मेरा सेकंड पिक क्या होगा, टू टेक आइडियाज फ्रॉम अदर कीवर्ड research tools like word tracker, keyword spy, ঠিক আছে। যেমন এখানটায় আমি কি করব, দেখবে আমি কিওয়ার্ড, দেখবে কিওয়ার্ড रिसर्च टूल्स, मैंने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे दिस इज द टूल्स इज कमिंग अप, राइट। सो मैं यहाँ पे गया, ठीक है। नहीं ना आपको क्या करना है, आप देखो यहाँ पे आपका मेन बुक मान लो कि वेब डिजाइनिंग, राइट। वेब डिजाइनिंग लेके मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, नो आई एम पुटिंग ओवर हियर। टारगेट कंट्री क्या है यहाँ पे कर सकता हूँ, अगर pro.in है स्पाइन, अगर मैं इंटरनेशनली टारगेट कर रहा हूँ मतलब .com अगर टारगेट करना चाहता हूँ तो देन आई विल चूज द .com, क्लियर सर। आपके हिसाब से वो .in होगा, करेक्ट। देन यू आर पुटिंग द सर्च। क्या होगा यहाँ पे काफी सारा टर्म्स आपको देखने को मिलेगा। दिस इज काइंड ऑफ, यू कैन पिक दिस, लुक इन दिस वेब डिजाइनिंग कोर्सेस जो आपके नहीं है, जरूरत नहीं है क्योंकि वो कोर्सेज यू आर नॉट ऑफरिंग। जॉब्स आप मतलब प्लेसमेंट एजेंसी नहीं हो, जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर अगर है तो यू कैन, टूल्स अगर है कर सकते हो। वेब डिजाइनिंग कंपनी हो सकता है, এটা তো ছিল, हाँ मतलब ওখানে আছে। এবার যেগুলো নেই, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग एंड होस्टिंग, ठीक है। वेब डिजाइनिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, like you can go ahead for the books you are not giving, certification you are not giving, diploma you are not giving, and in that cases आपको like web designing in चेन्नई, ठीक है। अगर चेन्नई बेस होता तो मैं वो पिकअप करता, ठीक है। नेक्स्ट इज वेब डिजाइनिंग कोलकाता, so I might choose this, okay, and over there I can put this। আদিয়া আমি তোমাকে কল করে নিচ্ছি, আমি এখনো একটু ক্লাসে আছি, কল করে নিচ্ছি, যখন ফ্রি হচ্ছে কল করে নিচ্ছি। ওকে থ্যাংক ইউ। তো লাইক ওয়েব ডিজাইনিং কলকাতা। नेक्स्ट আমি এখানটায় দেখে নেব যে আরো কিছু কিছু আছে কিনা। तो আমার जितना सारा मेरा वो कैटेगरी है ना, वेब डिजाइनिंग, कंटेंट मार्केटिंग, वो देखे मेरे को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि जो मेरे साथ मैच कर रहा है एंड इट इज कमिंग अप, got it। So there is a plenty of keywords and opportunities there, got it, fine। Next is basically
I'm just picking one. Okay. Next, third type. ऐसे करके वो तो मैंने एक टूल्स दिखाया आपको, तो काफी सारे टूल्स मैंने ऑलरेडी है, जैसे कि SEO बोर्ड, ये टूल्स है, वर्ड स्ट्रीम जो मैंने बोला था ये है, ठीक है, दिस वन इज देयर, सो यू विल गेट अ डिफरेंट आइडियाज फ्रॉम द डिफरेंट टूल्स, वो आपको लेना है. डन. नेक्स्ट यूजली मैं रिकमेंड करता हूँ लाइक टेक द relevant search terms showing in Google search. ये क्या है? लाइक जब मैं यहाँ पे वेब डिजाइनिंग कंपनी दे रहा हूं, ठीक है, वेब डिजाइनिंग कंपनी दे रहा हूं, ठीक है, वेब डिजाइनिंग कंपनी देने से इमीडिएट मेरे यहाँ पे देखो ये आ रहा है कि नहीं? सो दिस, अगर मेरा ये इंटरनेशनल टारगेट है तो मेरे यहाँ पे क्या होगा? .com होगा, और नहीं तो द बेटर इज आईपी को चेंज कर दो. देयर इज अ आईपी चेंजर इज देयर, जैसे कि ऑनलाइन एनालाइजर इज देयर, চেঞ্জ করা যায়, মানে আমি এখান থেকে বসে ইউএস এর আইপি তে আমি যেতে পারি, দেখিয়ে দিচ্ছি সেটা, দেখিয়ে দিচ্ছি. তো আই ক্যান পিক দিস ওয়ান, আমি এখান থেকে পিক করে এটা নিলাম. এটা দেখো এখানে যেমন ইনফো স্কাই, এটা একটা কোম্পানির নাম আছে, কোর্স দরকার নেই, সো আই ক্যান ডিলিট দিস. দিস ইজ আ বিগার ওয়ান, দিস ওয়ানস web designing company, Kolkata, India, maybe this I can take. List of web designing company, sector 5, data company, fine. So this type I might choose, correct? अगर सेम टर्म्स को अगर मैं यूएस बेस करना चाहता हूं तो कैसे करेंगे? ऑनलाइन एनालाइजर बोल के एक साइट है, यूएस बेस करना चाहे तो मतलब आईपी, और नहीं तो बाइंड टू, वो भी बहुत अच्छा साइट है. এটা হতে পারে, অথবা বাইন্ড টু দিয়েও করতে পারো. বাইন্ড টু ইজ গুড, bind2.com. Now if you searching google.com, so it will go for the like Google USA. Go for this. This is a US, नेदरलैंड का आ रहा है ये. তো এখানে তো আমরা ডাইরেক্ট লিখতে পারি google.au, না ওটা তো তোমার এখানের আইপি নেয়, মানে ইন্ডিয়ান আইপি নেয়, আমি এই তো আমি স্পেসিফাই করেছি এখান থেকে ওখানে যাচ্ছি, এখানকার মানে রেসেন নেয়. এটা ইটস আ থার্ড পার্টি অনলাইন থেকে গিয়ে তারপরে ওখান থেকে google.com করলে ইউএস এর তখন পাবেন, বা যে কান্ট্রিতে আপনি চাইবেন সেটাতে আপনি পাবেন. তো আমি যদি যেমন নেদারল্যান্ড চলে আসলো, তখন ওটা ইউএস করতে দিতে হবে. ইউএস এ কি করলে কি google.com, গুগল USA.com, আর গুগল ইউএসএ লিখলে তখন সার্চে আসবে, দেন ইউ ক্যান গো আর google.com দিলে আপনি এখানে নিচে থেকে google.com করে নেওয়া যায়. দিস ইজ দ্য ওয়ে. এবার আমি ধরুন এই জিনিসটা আমি এখানে সার্চ করলাম, ঠিক আছে, ও আমাকে এখানে যে সার্চ রেজাল্টস দেখাচ্ছে, সেই সার্চ রেজাল্টস দেখুন আমরা এখানে যে করেছিলাম তার থেকে আলাদা. এখানে সব ওই ওখানকার কোম্পানি, শিকাগো, গেলেন না, আমস্টারডাম, কিন্তু সার্চ টার্মস দেখো একই. এখানে কি দেখাচ্ছিল? কলকাতা, গেলেন না, গেলেন চেঞ্জেস, একটা ডিফারেন্স আমাকে একটু দেখান না. আচ্ছা এখানে সাথে তাই দেখাবো. ইন শিকাগো বা এটা আমি এখন এই তো সেম দিচ্ছি, সিম্পল ওয়েব ডিজাইনিং কোম্পানি দিয়েছি, এখানেও দেখো ওয়েব ডিজাইনিং কোম্পানি, সেম সার্চ টার্মস, টু ডিফারেন্ট রেজাল্টস. দেখো যে সাইটগুলো এখানে আসছে সেই সাইটগুলো এখানে আসবে না. তো এটাকে যদি ওই যেটা কলকাতায় বসে আমি করছি ওখানে যেটা বলছে সেটা ইন শিকাগো বলে যদি লিখে দিতাম তাহলে, না ইন শিকাগো বলে তো দেখুন না, ইন শিকাগো বলে লিখলেও কি আসবে? আমি তো ওখানে শিকাগো দিইনি, ওখানে কি ছিল? আমি জাস্ট ওয়েব ডিজাইনিং কোম্পানি, এই তো ওয়েব ডিজাইনিং. এটা কোন? আচ্ছা ওয়েব ডিজাইনিং. This also come up with this kind of results.
ঠিক আছে। তো এনিওয়ে, তো দিস ইজ দ্য এরিয়া। এখানটায় আমি দেখো কিছু কোম্পানি কিছু ডিটেলস আমি এখানে পেয়ে যাবো। দেখো, দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ে উই ক্যান পিক। আমি এখানে কিছু পেলাম, like top 10 website design companies, web design company Malaysia. So I don't record this keywords. Web designing companies for small businesses. This is a good terms. These are good terms. And this is another way of what I big drop is a company name. Designer clothing companies, no. Web developer companies in India, company website template, no. Best web developer companies to work for. This is for the job site. No. But we've identified a good keywords, this one. Why? This is called the long tail keywords. Q long tail? মানে to the specific. No. Long tail it means it's combined with the multiple words. Like, look at this, it's a combination of 1, 2, 3, 4, 5. 5 words combination. That is all. This is joining word नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है? Got it, sir? So this basically this will help me to like get the rank or something quickly. Okay, so that is my third hook. My fourth hook. Fourth, I usually recommend to come up for the keyword combination. Combination with location, price, offer, In the middle of a mini crisis, tickets have gone down. They need one. offer, like business type. For example, like वेब जैसे कि ये टाइप मैंने क्यों मेंशन किया, और ये क्या टाइप, ऑफर, बिजनेस टाइप, लोकेशंस की क्यों मैंने मेंशन किया। लाइक फॉर एग्जांपल यू यहाँ पे और भी आएगा, लाइक बिजनेस ब्रांड, क्योंकि ये कीवर्ड रिसर्च सिर्फ इसके लिए तो नहीं करो, आपका अगर ई कॉमर्स साइट होता है, जैसे कि गुची बैग, गुची का बैग इज बेसिकली टाउनर इज only the Reebok shoes. Got it, na? People search with the company brand name. Okay? In your web designing, some people search for the responsive website designing company. Responsive are terms. Okay? So this you can input in your like keyword. Sometimes ये और भी आइडिया दे देते हैं, जैसे कि आप एक क्रॉप्स, आपका एक टी शर्ट है, ठीक है, टी शर्ट का कीवर्ड का, जैसे कि टी शर्ट कंपनी, टी शर्ट चीप टी शर्ट और टी शर्ट क्लोथिंग्स, ऐसे अगर आपका बेस्ट प्राइस टी शर्ट, ये अगर आपका होगा जो आप B2C टारगेट कर रहे हो, क्लोथिंग्स अगर आप सेल कर रहे हो, वोमेन्स क्लोथिंग, किड्स क्लोथिंग, मेंस क्लोथिंग, ये आप B2C के लिए। अगर ये B2B आपका टारगेटेड होता तब क्या होता, टी शर्ट एक्सपोर्टर, टी शर्ट इंपोर्टर, टी शर्ट मैन्युफैक्चरर, Retailers. correct. So that you can come up into this fourth options. Yes sir, got it? Cool. Next, the fifth. The fifth basically I usually recommend fifth जो options है वो आप different social media hashtags से आप कुछ आइडिया ले सकते हो। Take ideas from social media hashtags. तो मैंने हम लोग यूज किया था ना फेसबुक वाला, तो that particular you can use it. For example, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, मान लो कि आप फेसबुक में जा रहे हो, now over there I am searching web designing So where do we company,
web designing company, right? Just company NY, right? So मैंने जस्ट इसको सर्च किया है. Look at this. मैंने इसको सर्च किया है यहाँ पे. I'm searching this. जैसे मैं वो सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो आपको उसी टाइप का डिफरेंट थिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. एंड यहाँ पे आपको और भी टर्म्स यहाँ पे वेब प्रमोशंस, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंटर मार्केटिंग पीपल्स आर पुटिंग. चेक द अदर्स टर्म्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. वेब डिजाइन कंपनी चेन्नई, राइट ना? सो ट्राई टू गेट द की आइडियाज की यहाँ पे आपको कुछ ऐसे कुछ मिल रहा है जो आपके काम में आए, मतलब टर्म्स जो आपकी ये लिस्ट में नहीं है. यहाँ से भी आपको पिक हो सकता है बिकॉज दिस इज अ नेचुरल थिंग्स. पीपल्स जो हैशटैग से शेयर करते हैं तो वो नेचुरल होता है ना. अभी हैशटैग का प्रमोशंस का बहुत जमाना चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो आपको वहां से भी आइडिया आपको मिल सकता है जो लोग सर्च कर रहे हैं जो आपको पता नहीं है. So that kind of things you can do. This is the way basically you can do. And और एक sections basically मैं बोलता हूँ वो that is basically combine keywords with prefix and suffix. Prefix and some cases pre and post. Add-on terms. ये क्या होता है? ये is a technique like web designing company I have taken. Look at this. This is my core keyword, right? Now top. And it can be like in India. इस सामने पीछे मतलब you can terms the different things, combinations आप खुद कर सकते हो. Based तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूजर को दिए. ठीक है. दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन टेक आइडियाज. ये और भी आपका प्रोडक्ट बेस होगा तो और भी आपको काम करने का मौका मिलेगा. दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू इट. ठीक है. सो करके जितना सारा मिल रहा है. एंड अनदर थिंग्स 7 टेक द इनपुट्स फ्रॉम योर कंपटीटर वेबसाइट्स. ऐसे जैसे यहाँ पे आपको मिला है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई टारगेटेड कीवर्ड्स. मतलब वेब डिजाइनिंग कंपनी मेरा टारगेटेड कीवर्ड्स है. उसी के बेस में मेरा ये सर्च रिजल्ट्स मिला शिकागो वाला. तो मेरे को क्या करना है, इसी साइट में जाना है. ठीक है. जाके देखो इसका घर से मेरे को डेटा निकालना है. कैसे निकालूंगा? जस्ट व्यू पेज सोर्स. जाने से क्या होता है, दे माइट यूज द कीवर्ड्स. आई एम जस्ट सर्चिंग कीवर्ड देके. नो देयर इज नो कीवर्ड्स दे हैव गिवन. फाइन देन आई विल फ्रेज है सर, की फ्रेज नहीं, की फ्रेज नहीं होगा. अगर नहीं तो इन दैट केसेस आई विल टेक द दिस. लुक एट दिस इज शिकागो वेब डिजाइन्स. ठीक है. शिकागो वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट. अच्छा देखो, शिकागो वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट फार्म जो अभी तक का हम लोग ऐड नहीं किया है. हम लोग कंपनी कर रहे हैं. फार्म सोचे नहीं सोचे, बट सोचना चाहिए था. दैट वी आर आइडियलिंग. जितना हम लोग करेंगे ना, नया टर्म्स आएगा. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस जो मैं आपको दिखा रहा हूं. लुक एट दिस. शिकागो तो नहीं था. हाँ मतलब that is the if I'm targeting this, if it is a Indian or maybe the Kolkata
कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ, तो दैट इज द पर्टिकुलर्स. देन क्रिएटिंग कस्टम, तो कस्टम वेब डिजाइन कंपनी, कस्टमाइज्ड है। that could be another keyword. So this is the idea. You can pick from your like computer website. अभी खत्म नहीं हुआ. Take inputs from competitor website URL, URL, putting into Google. So दूसरे से चला गया। हाँ, ये क्या है? ये सेम है, मतलब ये मेरा वेबसाइट है, राइट? ये मेरा वेबसाइट है, तो ये इसको मेरे को कहाँ पे देना है? जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था ना कि वेबसाइट यूआरएल देके भी डेटा मिलता है, मॉडिफाई सर्च में जाके यहाँ पे दे देना है, ठीक है? जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए क्या होगा, इस वेबसाइट का जो जितना सारा टर्म्स है वो ढूंढ के वो दे देगा। Look at this. और फिर हम लोग ये सारे टर्म्स को वेबसाइट किस में डालेंगे क्या? पहले तो आपको डिसाइड करना है कि वो आपके साथ, जैसे ईमेल मार्केटिंग आप नहीं दे रहे हो तो आप लोगे क्या, नहीं लोगे। तो यहाँ से आपको देखना है जो टर्म्स आपके साथ मिल हो रहा है, कीवर्ड प्राइमरी होते হবে मैंने कंप्यूटर, तो यहाँ से आपको वो पकड़ना है कि आपका कौन सा टर्म्स आपको जा रहा है, कौन सा टर्म्स नहीं जा रहा है. दैट इज काइंड ऑफ यू कैन पुट इट ओवर हियर, गॉट इट. सो ऐसा करके आप कर सकते हो. यू कैन टेक आइडिया फ्रॉम दिस साइट्स आल्सो. दिस इज ओवरऑल प्रैक्टिस जो हम लोग कर सकते हैं. एंड यहाँ से जो भी इनपुट होगा वो आपका नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप्स होगा यू कीप द ऑल द कीवर्ड्स, मॉडिफाई सर्च, यहाँ पे डालना है सारा का सारा, ये हटा दो. इतना सारा आपको और टर्म्स ढूंढ के जितने सारा मिला है ना वो सारा पकड़ के मॉडिफाई टर्म्स एकदम एक मध्य दे दो. इतना सारा मिला है वो हो जाता है. ये इनका वेबसाइट का है क्या? वो कौन सा वो यहाँ पे आप डाल रहे हो वेबसाइट का कंटेंट? वो कीवर्ड प्लानर है. अरे कीवर्ड प्लानर में फाइनल डिसीजन लेने के लिए मैं डाल रहा हूँ. तो जितना सारा मिला है मेरे को आप डाल रहे उतना हो. वहां पे डाल रहा हूँ. डाल के देन देयर इज अ काइंड ऑफ लाइक आप यहाँ पे ये देके यू कैन गो हेड फॉर द स्टेटवे गेट आइडियाज. अगर यहाँ पे देखो ऑल लोकेशन है, अगर आप कुछ रिस्ट्रिक्टेड करना चाहते हो जैसे कि इनके लिए इनका जो फूड बिजनेस है ये पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, तो वो यहाँ पे ऑल लोकेशन नहीं देगा. यहाँ पे जाके वो ढूंढ लेगा कि कोलकाता और मे बी द कॉस्बा और समथिंग. कोलकाता विल बी द बेटर because then you restricted with the keywords, with the terms, with the locations. So this is the case. ठीक है. तो अगर मेरा वेस्ट बंगाल टारगेट है तो I will take West Bengal. If I will pick India, then my target will be the India. Then I will get an idea according to that. Got it? अगर all लोकेशन है तो इंटरनेशनल टारगेट हो जाएगा. तो ऑन दैट बेसिस ये देखो आपको टर्म्स को जो टर्म्स आपने सोचा वही टर्म्स का कितना एवरेज मंथली सर्च वो दिखा दे रहे हैं आपको. आपको क्या करना है, आपको इसको डाउनलोड करना है. 744 आइडियाज इज देयर. এখন যা এখন যে পড়া হলো তার বেসিসে দেখো এটাকে ডাউনলোড করতে হবে. গট ইট স্যার. এবার এখানে গিয়ে আমাকে কি করতে হবে, আমাকে এখানটায় গিয়ে এবার इसको ओपन करना है. ओपन करके आपका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगा, आप इसी साइड इस जो कॉलम जो है कॉलम को डिलीट कर दो. करेंसी जरूरत नहीं है, आप ये कुछ जरूरत नहीं है. सिर्फ दो कॉलम चाहिए आपको, कीवर्ड एंड उसकी एवरेज मंथली सर्च. कोई कंफ्यूजन? फाइन. now there is a second activities. second activities क्या है, जो आपकी यहाँ पे लगेगा कि आपको जैसे कि जो ब्लैंक है मतलब इसका कोई सर्च रिजल्ट नहीं है, तो आप इसको डिलीट कर दो. नेक्स्ट आपका आएगा जो आपके हिसाब से रेलेवेंट नहीं है, जैसे कॉस्ट पर क्लिक फॉर एग्जांपल
ये आपके हिसाब से रिलेवेंट नहीं है, आपके साइट के कंटेंट के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है, आप वो हटा दो। तो ऐसे करके जितना सारा आपको इरिलेवेंट कीवर्ड है वो पहले यहां से निकाल दो। समझ में आया सर? नेक्स्ट, उसके बाद आपको जो है बहुत जेनेरिक टर्म्स, ये 1 वर्ड 2 वर्ड्स, ये अगर ऐसा रहता है तो दिस इज अ बेसिकली विल बी नॉट इन माय लिस्ट। क्यों? जेनेरिक टर्म्स इज गुड फॉर ब्रांडिंग, नॉट फॉर बिजनेस। एसईओ जो ढूंढ रहा है, वेब डिजाइन जो लोग सर्च कर, वेब डिजाइन, they might looking for the courses, they might looking for the books, they might looking for the a company that they want to join, but they might not for the peoples, those are looking for the services. Got my point? So in that cases, and generic keywords is a hard to crack. मतलब वो keywords रैंकिंग होने के लिए you have to give a more and more effort, you have to wait for the longer period of time to achieve that one. Clear? তো that is basically যেটা হয় SEO তে frustration যেটা আসে সেটা এই কারণে আসে, because of choosing the right keywords. So 1 or 2 words easily know. যেমন ধরুন আপনার ক্ষেত্রে আমি যদি বলি like if anyone looking for the restaurant, or maybe the homemade food is basically 3 terms. Homemade food, anyone's looking for the homemade food recipe, homemade food recipe ideas, the homemade food recipe books. So this is basically homemade foods is a very generic in terms. So डायरेक्टली टारगेटेड फॉर दिस, सो हम लोग उसको स्किप करेंगे। হোমমেড রাখবেন না কেন, ওর সাথে লিয়াজো টার্মস থাকবে। আচ্ছা, যেমন एग्जांपल যেমন হচ্ছে এইটা হচ্ছে আমার জন্য গুড কিওয়ার্ডস। এই টপটা আগে ঢোকানো হচ্ছে ইন ইন্ডিয়া, তারপরে তার মানে হচ্ছে কি দে আর মোর ফোকাসড ইনটু দ্য বিজনেস। এই ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি থেকে এটা আরেকটু বেটার, আবার যদি আমি এখানে যাই এটা আরেকটু বেটার। Some of the name should be business, মানে আমার জন্য বেস্ট হোমমেড ফুড এট কসবা, সেটা হতে পারে, কারেক্ট হতে পারে। যত লং টাইম যাবে তত মাথায় রাখবে। আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিলে বুঝতে পারি। ধরো তোমার দাঁতের ব্যথা হয়েছে, দাঁতের ব্যথা লাইক আপনার टूथ में में आपका पेन हो रहा है। मेरा हिंदी बहुत अच्छा है तो इसलिए समझना, मतलब समझ लेना जो भी मिस्टेक हो रहा है। सो इन दैट केसेस अगर वहां पे आपका पेन हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो व्हाट यू डू, यू ट्राई टू कि मेरे को अच्छा डॉक्टर को दिखाना है भाई, तो आप क्या सर्च करोगे, बेस्ट डेंटिस्ट इन कोलकाता, माने यूजुअली कोलकाता में, क्योंकि आपके पास टाइम है राइट, आप अच्छा जगह पे जाओगे। रूबी में आप रहते बालूघाटी में, आप रूबी में नहीं जा सकते अच्छे डॉक्टर दिखाने के लिए, आप लोग नहीं जा सकते हो, रोजगार टेली में नहीं जा सकते हो ना अच्छा डॉक्टर, क्योंकि आपका अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए। तब क्या ढूंढोगे, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, जेनरिक डेंटिस्ट, बेस्ट डेंटिस्ट, डॉक्टर्स कोलकाता, डेंटिस्ट कोलकाता, बेस्ट डेंटिस्ट इन कोलकाता। Am I right or wrong? This is the basically terms people are searching for. Now, one very good morning, you have a pain which is not it's like killing you every single seconds. A huge pain you are feeling. Then what will be your searches? Immediate treatment. Dentist near my বাড়ির নিচে, means near Balihati Chaurasta More. This will be your search terms. This used once very specific. तो जब long tail होता है people are more specific. They are more like-minded to buy a product. Again, another examples. Do you love photography? कौन photography love? Everyone's there. Good. कैमरा है सबके पास, कैमरा है।
like photographers always look for the good camera, good lenses or something, right? So आपको एक कैमरा खरीदना है, तो फर्स्ट आप क्या करोगे? कैमरा, बेस्ट कैमरा, बेस्ट मॉडल कैमरा, बेस्ट कैमरा फॉर फोटोग्राफी, तो ऐप ढूंढोगे. देन आप रिव्यू आपको मिलेगा. देन आपने देखा कि निकॉन का 00x 3x इज बेसिकली आपका पर्टिकुलर्स लिखा है कि बहुत अच्छा है, दूर का पिक्चर बहुत अच्छा आएगा, ये आएगा. फाइन. देन व्हाट यू विल डू? यू गो फॉर द सर्चेस इन द लाइक्स Nikon 3x model prices. প্রাইসেস দেখলে ফার্স্ট ঠিক আছে, তো দেখলে আর এটা আছে. দেন নেক্সট এরপরে হচ্ছে নিকন 3x চিপ, নিকন 3x मॉडल थोड़ा सस्ता चाहिए. डील्स, কুপন কোডস. যখন কুপন কোড ডিলস মিন্স ইউ আর ফাইনালাইজিং. আরো যখন তুমি निकॉन যখন যাবে, निकॉन में 3x এর আবার ধরো যেমন J7 का 2-3 मॉडल है कि नहीं, मतलब ऐसा होता है ना सीरीज सीरीज वाला. तो शायद निकॉन 3x का कुछ एक मॉडल है जो और मतलब लेटेस्ट है, और सम केसेस में भी दैट इज वेरी गुड फॉर द कैप्चर द दैट फोटोग्राफीज जो एनिमल और दैट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए अच्छा है. सो आप लेंसेस का डेक्लेरेशन देखिए कि लेंसेस 2.0x করে তোমার টার্মস আসবে. when you are searching that terms means you are buying minded, you are not in a searching mode, you are in a decisions making mode now. if I am targeting that keywords for my SEO, it will be very easy to rank because it's a long tail in nature. Second, if my sites are ranking, there is a chances that people are coming, they are coming less. traffic is less for that, but those people are coming, they are into the buying mode. There is a chances for the conversion. मेरे को क्या चाहिए? मेरे को conversion चाहिए. एक दुकान आपने ओपन किया, सुबह से लेके आप मतलब क्लोथिंग का, जैसे शादी का 10 लड़की आया, 10 बार 10 ये किया, एक ही नहीं खरीदा, और 2 लड़की आया है, एक से सेल हुआ, तो कौन सा अच्छा? मेरे लिए वही अच्छा है. 3 आया गया, फायदा नहीं है, मेरे को खरीदने से फायदा है. तो दिस इज द बेसिकली टर्म्स. जब लॉन्ग टेल होता है दैट विल हेल्प यू फॉर दैट. ठीक है सर? सो आपको यहाँ से डिसीजन लेना है कि कौन सा ये है. तो नेक्स्ट क्लास में आपका जो जिसके साइट पे काम करोगे, मैंने पहले बोल दिया था आपका एक ब्लॉक रहेगा, डोंट हैव अ वेबसाइट. सो उसी वेबसाइट पे, अगर खुद का वेबसाइट है, किसी वेबसाइट के ऊपर आप करना चाहते हो, तो उसी वेबसाइट के ऊपर कीवर्ड रिसर्च करके मेरे को एक लिस्ट ऐसे करके एक लिस्ट रहेगा, और एक यहाँ पे शीट 2 बना लेना जहां पे आपका सजेशंस रहेगा. सीरियल नंबर is a punch up, serial number, targeted keywords. यहाँ पे मेरे को 10 keywords आप चूज करके मेरे को दोगे आपके साइट के लिए. देन मैं कंपेयर करूंगा कि आपके रिसर्च एंड आपके डिसीजंस दोनों में क्या ट्यूनिंग चाहिए. প্রথমটা যেটা আমরা পেয়েছি এখান থেকে, যেটা লিস্টিং থেকে যেগুলো আনওয়ান্টেড কিওয়ার্ডস আছে, যেগুলো লো ভলিউম কিওয়ার্ড আছে, যেগুলো 2 or 1 ফ্রেজেস আছে, সেগুলো বাদ দিয়ে যেটা থাকবে সেখান থেকে আমি পিক করব আমার জন্য, আমার সাইটের জন্য কোনগুলো. যেমন এটার ক্ষেত্রে আমি নিচ্ছি हाँ मिस्टर वो हो गया, मैं 5 मिनट में आपको पकड़ रहा हूँ. ठीक है? So एक बार फिर से बता दीजिए ना क्या क्या काम करना है. Then I am picking these things over here. होमवर्क क्या है? I am picking this. This is another. ठीक है? तो ऐसे करके आप यहाँ से पिक कर सकते हो with the that ones average volume. एवरेज वॉल्यूम आपको मिल जाएगा यहाँ से, कोरिलेटेड दिस वन.
would it look like this? সেকেন্ড ডেটে কি লিখছেন এটা sheet এটা হচ্ছে আপনি এখানে করে দিন सिलेक्टेड कीवर्ड्स ऐसे कर दीजिएगा सिलेक्टेड कीवर्ड्स। तो आपका डिसीजन क्या हो रहा है, इन कीवर्ड्स जो आपकी वेबसाइट के लिए आप टारगेट करना चाहते हो वो कीवर्ड्स क्या क्या होंगे, तो वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। मेरा देखने का क्या मतलब रहेगा, मेरा देखने का मतलब यू आर इन राइट ट्रैक और नॉट। आपको 50 कीवर्ड्स मिलेंगे कि आपको मे बी तो 1000 मैंने यहाँ पे 800 दिखाना मतलब 800 नहीं तो 10,000 भी हो जाता है। तो वहां से बहुत टफ है कि 10 निकालना है, तो उसको पहले शॉर्ट करके 50 ले लो, उसको शॉर्ट करके 30 ले लो, 30 से 10 निकालो। अभी मेरा भी ये होगा कि आप राइट पथ में हो कि नहीं, दैट मैं यहाँ पे चेक करके पता चल जाएगा मेरे को। तो आपको वहां पे कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होंगे, जब मिस्टेक्स करेंगे तब देन इन द नेक्स्ट क्लास यू विल लर्न द हाउ टू मेक इट फाइनलाइज फुल प्रूफ। एंड अनदर थिंग्स आपको बोलते हैं कि 30 कीवर्ड जो पक्का फिट है, बिजनेस के लिए भी फिट है, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, बहुत रेलेवेंट है, तो क्या करेंगे हम लोग उसमें 10 जो है वो फर्स्ट फेज के लिए ले लेंगे, मतलब हम लोग का फर्स्ट फेज है। जब वो रैंकिंग में आ जाएगा 3 to 6 मंथ्स में, देन हम लोग सेकेंड जो ये है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि 30 एक साथ लेंगे तो वेटेज नहीं आएगा, समझ में आया ना। 30 मतलब कि हम लोग 10 लिंक बिल्डिंग किया है, बाद में आएगा लिंक बिल्डिंग का पार्ट, मतलब 10 लिंक किया तो 10 लिंक 30 के बीच में वो डिवाइड हो जाएगा। अगर 10 रहेगा तो एक के बीच में एक बंदा होगा। जैसा वो ऐसा है कि एक पिता माता का अगर 10 बंदा होता है और एक बंदा होता है, जैसा एक बंदा में सारा एफर्ट लग जाता है, 10 बंदा के कौन खाया कौन नहीं खाया तो पता नहीं है। सो वो नहीं होना चाहिए। वी आर वेरी सिलेक्टिव 10 कीवर्ड्स एंड विल गो अहेड विद द चेंजिंग दैट टारगेट कि मेरे को उसी कीवर्ड्स को रैंकिंग कराना है। और कराने के लिए क्या करना है वो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप्स होगा जो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। यस सर, একবার একটু মানে যে জিনিসটা আমরা করলাম সেটা একবার ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের যে পার্টিকুলার কিওয়ার্ড রিসার্চ, উই আর ডুইং কিওয়ার্ড রিসার্চ ফর आवर वेबसाइट टू सिलेक्ट द बेस्ट 10 कीवर्ड्स फॉर माय बिजनेस। कीवर्ड प्लानर होगा वो, कीवर्ड प्लानर का जो है वहां से हम लोग कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। अभी तो यही दिखा रहा था, मतलब सिर्फ कीवर्ड प्लानर नहीं है, देयर इज अ मतलब कीवर्ड प्लानर से हम लोग फाइनल डिसीजन लेंगे, बट उसको इनपुट देने के लिए देयर इज अ प्लेंटी ऑफ ways is there, technique is there। আজকের ক্লাসটা হচ্ছে कीवर्ड रिसर्च, एकदम ठीक। কিওয়ার্ড রিসার্চ হলো সেটাতে সেখান থেকে উই গো টু দিস কিওয়ার্ড প্ল্যানার। हाँ, कीवर्ड प्लानर एंड दिस इज द टेक्निक्स बेसिकली जो मैंने बोला है, तो दैट इज द पार्टिकुलर पॉइंट्स इज देयर। सो পরে এখান থেকে যা ইনপুট পেলাম সেটা আমরা কিওয়ার্ড প্ল্যানার দিলাম, সেটাকে ডাউনলোড করলাম, সেখান থেকে নিয়ে আমরা সর্ট করলাম, এটা করে আমার জন্য नेक्स्ट क्लास से नहीं আসবে। दैट इज द बेसिकली योर एक्टिविटीज, नथिंग एल्स। अगर ये आप कर रहे हो भैया, आपकी जो वेबसाइट है, जो वेबसाइट में आप काम करना चाहते हो, बिजनेस तो है नहीं मतलब आपको एक ब्लॉग बनाने के लिए बोला था, ब्लॉग है, उसी ब्लॉग के बेस में आपको बनाना है। मान लो कि आप वो ब्लॉग बनाया शायद ব্লগটা কি ব্লগস্পটে যেটা ব্লগ বলেছে blogger.com এর কিছু, আপনার তো ওয়েবসাইট আছে, আমার ওয়েবসাইটটা তুমি করতে পারছি না কারণ ওটা কমপ্লিট করেনি। এটা আমাকে বলেছিলেন যে ওটা আমি আমার কাছে ল্যাপটপে ওই একটা পিন যেটা না, ওই পিনটা নিয়ে এসেছি। পিন দিয়ে তো হবে না, সি প্যানেলের লিংক লাগবে, ইউজার নেম পাসওয়ার্ড লাগবে। ইউজার নেম পাসওয়ার্ড মানে ওই যেটা আমার যে নাম্বারটা, সেই নাম্বারটা আমার কাছে নিয়ে এসেছি। আমি দেখাচ্ছি। হ্যালো, কারেক্ট, বলুন। আমাদের আমাদের এখানে যেটা রয়েছে, আমাদের কোর্সগুলো রয়েছে ডিজিটাল মার্কেটিং এর উপরে। তো আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং এর স্টুডেন্ট পাবেন, ডেভেলপার পাবেন। হ্যাঁ, তো আপনি ওখানে রিকোয়ারমেন্টটা দিয়ে দিন, ওখানে ইমেল আইডি আছে info@competinfotech.academy.com, ওখানে আপনার রিকোয়ারমেন্টটা একটু আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন, তাহলে আমরা ওটা স্টুডেন্টদেরকে ফরওয়ার্ড করে দেবো। ओके, थैंक यू। सो आपको क्या करना है, उसी ब्लॉग पे कर सकते हो, और नहीं तो कोई भी एक सैंपल वेबसाइट ले सकते हो। मान लो कि आपका अगर नया ही है, आप एक काम कर सकते हो, आपका रेफरेंस के लिए kulinumber1.com ले लो। कुली नंबर 1 पैगासन मोबाइल के ऊपर नितिन का मंता ले लो, बहुत सारा साइट है, तो उसमें रिपैम मंता ले लो, कोई भी एक साइट ले लो, उसी बेस में उसी के ऊपर आप कीवर्ड रिसर्च करो,
তুমি তোমার ওয়েবসাইটের উপরে করো, যে ওয়েবসাইটটা আছে কোম্পানি ওয়েবসাইট, बेस्ट डील्स एंड कूपन्स जो आपने बनाया, हाँ तो वो अगर आपने ब्लॉग बनाया तो उसके बेस में कीजिए। सर मेरा तो नॉर्मल ब्लॉग है, अभी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है उसका, तो उसका नाम क्या दिया है? piyush.blogspot ऐसे ही मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, हाँ, तो पीयूष में वहाँ पे क्या सेल करना चाहते हो? वो तो सोचा नहीं सर। जाहिर है आपको सोचना पड़ेगा। तो मतलब जैसे आज दिखा ना एफिलिएट में फ्लिपकार्ट, हाँ, तो एफिलिएट का डालोगे तो वहाँ पे कूपन्स वाला, डील्स वाला, मे बी यू कैन ऑफर द सेम सर्विसेज जो आप सीख रहे हो फ्रीलांसिंग के लिए, एसईओ सर्विसेज, एसईओ पीपीसी सर्विसेज जो आप सीख रहे हो वो आप वहाँ पे दे सकते हो। तो ऑन दैट बेसिस आप करो, कीवर्ड रिसर्च करो। सो बेस्ट डील्स চলো, হ্যাঁ, एफिलिएट का देखिए এফিলিয়েটের একটা পার্ট আমি দেখিয়েছি ওদেরকে, এফিলিয়েটের আজকে তো হবে না, নেক্সট ক্লাসে তাহলে একটু আগে আইলে আমি দেখিয়ে দিতে পারবো। सर उन लोगों ने पीपीसी और ऐसे में तो भी स्टार्ट ही नहीं होना। नहीं हुआ। तो in that cases this is you can do, and when you learn this now in next class what we will do, we will start हम लोगों का another earning opportunity journey जो फाइबर से होगा, ठीक है? क्योंकि जब आप ये कीवर्ड रिसर्च आप सीख लेंगे तो देखो क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटी निकाल सकता है। सिर्फ वन आइटम अभी हजारों पड़ा हुआ है, जस्ट लुक एट दिस। जो जितना तक आपको सिखाया है आज, जितना क्लास हुआ है, इतना से आपका देखो अर्निंग स्टार्ट हो सकता है। लुक एट दिस, आई विल डू एसईओ कीवर्ड रिसर्च, आई विल डू कीवर्ड रिसर्च, करेक्ट? तो मैं मान लो कि ये ले रहा हूं, ठीक है? सो देखो ये बंदा, देखो दो 10 कीवर्ड रिसर्च देखा जो आप कर रहे हो, कितना भाई 1734 उनका रिव्यूज है, 4 ऑर्डर इन क्यू है, पर ऑर्डर वो क्या दे रहा है $10 करके। सो अगर मैं पकड़ लेता हूं कि 1734 ही उनका सेल हुआ है, दो इट इज मोर देन 5 to 10 टाइम्स, ठीक है? 5 से 10 ऑर्डर मिलने के बाद एक रिव्यू मिलता है, ठीक है? तो एनी हाउ अगर मैं पकड़ लेता हूँ कि जितना सेल हुआ उतना ही रिव्यू आया है, तभी उनका सिर्फ यही से 17,000 17 कितना 1734 ना, 1734 एंड अनदर 4 1738 तो यहाँ से $10 है, तो $10 से वो $2 ले लेगा, अच्छा तो $8 उनको मिलेगा, ठीक है? 8 into 67 65 भी पकड़ते हैं, ये 67 100 9 लाख रुपीस जो अभी के आपने सीखा है उसी दे के कर सकते हो, कमा सकते हो। नॉट आई एम टेलिंग, रिपोर्ट इज टेलिंग। কিন্তু কিভাবে করবো এটা? তাহলে আমাকে ওই ওদের কাছে যে ফিভারে রেজিস্ট্রেশন করলাম, হ্যাঁ, এটা তো আপনি টেকনিকটা শিখলেন, মানে আজকে আপনি নলেজটা পেলেন, নলেজটা আজকের আগে ছিল না নলেজটা আপনি পেলেন, নাও নলেজটা পাওয়ার পরে এটাকে আমি এক্সিকিউট করতে দিলাম, আপনাকে হোম টাস্কটা দিলাম। যখন আমি দেখবো ওটা फाइन ट्यून, तখন नेक्स्ट क्लास में फाइबर में आप लोगों को लिए अकाउंट ओपन करने के लिए बोला था मैंने, तो फाइन। तो नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे कि फाइबर में वो गिग कैसे क्रिएट करते हैं, ताकि आप ऑर्डर ले सकते हो, ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है? सो दैट इज द थिंग्स वी लर्न। मेरे लाइक क्या बिजनेस कुछ ठीक रहेगा, क्या जी? क्या चीज मतलब साइट में क्या चीज का बिजनेस करना ठीक रहेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दुनिया में कोई नहीं बोल सकता है, वो सिर्फ आप ही बोल सकते हो। द गुड थिंग इज आप जो सीख रहे हो वही दो, सबसे बेटर है। मतलब आप एसईओ सीख रहे हो, पीपीसी सीख रहे हो, सोशल मीडिया सीखोगे, जो डिजिटल मार्केटिंग में जो जो सर्विसेज है वो तो सीख रहे हो, तो यही सर्विस ऑफर करो, वही तो बेस्ट है, सिंपल, ठीक है? कोई सर्विस लेके एक ब्लॉग बनाओ, तो वहाँ पे আমি একটা যদি ব্লগ বানাতে তাহলে আমাকে কি করতে হবে? নিজে ব্লগ স্পটে গিয়ে ব্লগটা বানাতে হবে, ব্লগ স্পটে গিয়ে ফার্স্টে ব্লগটা বানান বা ওয়ার্ডপ্রেসে বানান, যেখানে ব্লগ স্পটে বানালে बेटर। सो दिस इज द केस, राइट? आई होप यू गॉट इट। क्या काम है, क्या अपॉर्चुनिटी है एंड कैसे करके करना है वो आपको दिखाई दे रही है, एंड वीडियो इज आल्सो हियर। आपको वीडियो चाहिए, देन इन दैट केसेस यू कैन कम अप फॉर दिस।